Be in video mode. Adab Namaskar Mudra. Keep close your eyes. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् आलं शरीरस्य चावदकेन चोपाकरोत्तं प्रबोरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Rub your palms. When it's little warm, gently attach your ball and gently open your eyes. So last day where we have completed Jnana Yoga. Okay. So anyone have any question on Gyan Yoga? No. Okay. Then we'll move to Bhakti Yoga. What is Bhakti? Bhakti is unconditional and intense love for God is called Bhakti. भगवान के प्रति निस्वार्थ एवं नियत प्रेम ही भक्ति है. Why it is called निस्वार्थ? क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं if I offer puja to God and then he will be happy and then they will give us some mercy or they will give them some prosperous wealth, all those things. But that is not bhakti. Bhakti yoga is yoga of devotion. It emphasizes the opening of the head to divine love, the union of lover, the yogi, and beloved, the divine. This devotion all over is often translated into singing a holy song or chant with ecstatic repetition of the name of the beloved in the gathering called kirtanas. Bhakti Yoga does not tell you where to direct that devotion or the specific method by which you should do it. This is left to the devotee's personal preference. जैसे हम लोग जब ज्ञान योग पढ़ाई कर रहे थे उसमें ज्ञान योगी का कोई एक स्पेसिफिक है कि उसके अंदर में क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भक्ति योग में ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल अबाउट दैट भक्त वो कैसे भगवान के सामने या भगवान को कैसे वो प्राप्त करना चाहेगा, वो उसका ऊपर है. Narad Bhakti Sutra is premier treatise on the stage of bhakti that emphasizes the connection between bhakti and prema and treats the age-old agima about the nature of love and in a original fashion. Bhakti softens the heart and removes jealousy, hatred, lust, anger, egoism, pride and arrogance. मतलब जो भक्त होंगे उसके अंदर में ये कुछ भी नहीं रहेगा. It infuses joy, divine ecstasy, bliss, peace and knowledge.
all cares, worries, and anxieties, fears, mental torments, and turbulences vanishes entirely. The devotee gets freedom from the cycle of birth and death. He attains the immortal abode of everlasting peace, bliss, and knowledge. जो भक्ति में रहेंगे वो एवरलास्टिंग पीस ब्लिस एंड नॉलेज उनके अंदर वो फील करेंगे. In this Kali Yoga, bhakti is seen as the surest, safest, and easiest form of yoga to practice. The bhakta does not try to rid himself of emotions, but seeks to channel and harness the emotions by sublimating them into devotion. The aspirant treading the path of bhakti attempts to realize the truth by devotion to and love of God in a personalized form, that is Ishta Devata. Prayer, chanting, japa, repeating a mantra or name of God, hearing or telling stories of God and saints. Puja, ceremonies, and rituals are the basic techniques of bhakti, a mystical relationship with God, who may seem as a friend, a child, a mother, or a teacher, is sought and developed in Bhakti Yoga. It rides the aspirant of emotions and egocentricity by developing humility, self surrender, and feelings of being an instrument in the hand of God. जो भक्ति योग में रहते हैं वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के वो काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि he or she thinks about anything by him or herself. वो सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के वो रहते हैं. कितने प्रकार का भक्ति होता है और कितने प्रकार का भक्त होता है. 9 ways involved in भक्ति योगा. That is कीर्तनम, स्मरणम, पदसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम एंड आत्मनिवेदनम. ये 9 टाइप्स, इन 9 नाम याद रखना होगा in examination point of view. Number 1 is Sravanam. What is Sravanam? Hearing the chanting of the names of and glories of the Lord. It means listening to divine glories of Lord about His form, qualities, leelas, or divine place, His miracles, and His spoken words like the Bhagavad Gita. मतलब जैसे श्रवणम भगवान का गुणगान सुनना ही श्रवणम है, या भगवान के नाम कुछ सुनना, that is called श्रवणम. Kirtanam, chanting his glories. It involves singing the praise of Lord, infinite power with intense devotion. Chanting God's name brings relief to the devotee's mind. कीर्तनम मतलब कीर्तन करना. जैसे भगवान का गुण कीर्तन करना, that is we can say कीर्तनम. स्मरणम, remembering the Lord. मतलब भगवान को याद करना. It involves constant remembrance of the Lord, feeling His presence all the time in all places. In the task, it is to lose oneself in the contemplation His qualities. मतलब जब स्मरण करेंगे मतलब उनका नाम ही मन में स्मरण करें. That is called स्मरणम. Pada Sevanam, serving the Lord's feet or His sanctified sandal padukas, in honoring himself completely at the Lord's feet, lotus feet of the Lord. ठीक है, वो भगवान का क्या बोलते हैं, पैर को पूजा करना. जस्ट लाइक इन रामायण हम लोग देखते हैं भरत वो श्री रामचंद्र का पादुका लेके आते हैं एंड वो राज्य शासन करते हैं. वो कभी भी ये नहीं सोचे कि this is my kingdom. He always says that I am the servant of
लॉर्ड राम, और ये पादुका है, मतलब वो ही राज्य शासन कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग्स ऑफ पद सेवनम। ऐसे कोई देखा किसी को पूजा करते हुए भगवान का पादुका? স্যার ওই বাড়িতে তারা মায়ের পা থাকে দেখেছি। अच्छा। তারা মায়ের তার পা থাকে, নারায়ণের পা থাকে। নারায়ণের ওই খড়ম পা থাকে দেখেছি। হ্যাঁ, ওইগুলোকেই পুজো করা হয়। दैट इज पद सेवनम। ओके, नथिंग एल्स। देन अर्चनम, सर, द लॉर्ड। यस। एक सवाल है। यस। ये उपारति जो है ना, इसका मतलब तो ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट है उससे डिटैच हो जाना। फॉर टाइम भी उपारति हाँ। इज नॉट फॉर, दैट इज वैराग्य बोल सकते हैं या प्रत्याहार बोल सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग कोई भी एक जगह से मन को हटा लेना, दैट इज कॉल्ड what you have said, मतलब पूरा, दैट इज उपारति। यस, दैट इज उपारति, मतलब फॉर टाइम बीइंग अगर मन को हटा लेते हैं कोई भी एक विषय से। मतलब वो क्या एक्सटर्नल वर्ल्ड में, मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीजों से? एकदम। तो ये तो फिर ज्ञान योग हो गया कि उपारति तो ये ज्ञान योग में आता है। अब ये भक्ति योग में ये जो पादुका, जो मतलब ये पद सेवनम, हाँ सेवनम जो बोल रहे हैं, वो तो भगवान की वो जो पादुका है उसका पूजा कर रहे हैं, वो भी तो एक मटेरियल ही है ना। और एक बार बोलो। ये उपरति जो है, मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल जो चीज है इससे हम डिटैच हो जाएंगे। ओके, तो फिर ये जो भगवान का जो पादुका है, ये पद सेवनम जो आपने अभी अभी बोला कि वो पादुका को पूजा कर रहे हैं, तो वो भी तो एक मटेरियल ही है। देखो, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। दैट इज ज्ञान योग और दिस इज भक्ति योग। ज्ञान में एवरीथिंग दे आर नॉट डूइंग पूजास, मतलब वो हो सकता है वो कभी पूजा करे ही नहीं, ठीक है। अच्छा। वो सिर्फ एवरीथिंग दे विल नो बाय नॉलेज, ज्ञान के द्वारा वो जानेंगे। वेर एज यहाँ पे जब भक्ति योग आ रहे हैं, तो दैट इज एवरीथिंग ऑल अबाउट, तो पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब कुछ उल्टा। भी हाँ, मतलब चलेगा। ये कंसेप्ट डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वो ज्ञान का उतना जरूरत है नहीं। कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकते हैं, उसका सिर्फ अल्टीमेट उद्देश्य ही होना चाहिए वो भगवान के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करे। अच्छा, ओके। They should establish the connection with God. That is bhakti. ओके, और एक सवाल है। Yes. ये जो मनोमया कोशा जो मेंटल बॉडी थे ना, उसमें जो है वो जो मानस, अहंकार एंड लोअर बुद्धि, वो होके बनते हैं। हाँ, वो तीनों मिलके। तो ये लोअर बुद्धि क्या है? लोअर बुद्धि है, अच्छा। और एक बार बोलो, क्या क्या? मन, ये बुद्धि, अहंकार, यही तीन? हाँ नहीं यार, हाँ, लोअर बुद्धि कहाँ से आए? यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये जो मनोमय कोश है, ये मतलब जो कंप्राइज्ड ऑफ मानस, अहंकार एंड लोअर बुद्धि। लोअर बुद्धि मतलब जैसे कोई भी हम लोग कुछ भी भक्ति दिखा, मतलब कुछ भी काम करते हैं, सो वो मन से करते हैं। फिर बुद्धि मतलब लोअर बुद्धि इज ऑल अबाउट, क्या बोलेंगे इसको? मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि ये लोअर बुद्धि क्या है, तो फिर इसका मतलब ऑपोजिट हायर बुद्धि होगा, तो वो क्या हाँ, है? अच्छा, हायर बुद्धि क्या है?
हाँ, और लोअर बुद्धि क्या है, ये दोनों? अच्छा, लोअर बुद्धि अगर देखते हैं, डॉक्टर ने बोला कि मिठाई नहीं खाने के लिए इफ यू हैव डायबिटीज, ठीक है, और आप वो डॉक्टर बोला है इसलिए आप नहीं खा रहे हो, दैट इज लोअर बुद्धि। एंड हायर बुद्धि क्या है, आप जान गए कि मैकेनिज्म क्या है, कि अगर इफ आई हैव डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, एंड इफ आई एम हैविंग दिस क्या बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ स्वीट आइटम्स, तो वो शरीर में क्या क्या बदलाव लेके आएंगे, ठीक है। ओके। और वो अगर हम नहीं खाते हैं, सो दैट इज हायर बुद्धि, बिकॉज डॉक्टर के बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होता है। जैसे आई हैव सीन वन पर्सन, वो क्या है कि उनको डॉक्टर ने बोला कि एक रोटी खाना है, ठीक है, रात में, तो वो जाके रोटी तो बनाया एक ही लेकिन इतना मोटा सा। अच्छा। डॉक्टर ने बोला है कि एक बाटी राइस लेना है, ठीक है, बाटी तो एक ही लिया लेकिन वो बाटी बहुत बड़ा था, ठीक है। सो घर में तो सभी लोग बोलेंगे अच्छा खाओ, क्योंकि डॉक्टर ने हाँ बोला, हाँ। तो वो मार्केट से बाटी ही खरीद के लेके गया बहुत बड़ा सा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा। वो दैट इज, वो क्यों हुआ, वो दैट इज लोअर बुद्धि। वो सोचे कि अच्छा हाँ हाँ, तो डॉक्टर क्योंकि की सलाह उसको क्या लगा, है, हाँ, उ- रोटी एक वो ही खाए। सोचे नहीं, डॉक्टर बोल दिया और उसने ले लिया, मतलब उसका कुछ ध्यान नहीं लगाया या फिर कुछ ज्ञान नहीं, हाँ, मतलब वो क्यों हो रहा है एग्जैक्टली उनका उसकी डेप्थ में नहीं गए। डेप्थ हाँ। में नहीं गए, दैट इज लोअर बुद्धि। ओके ओके, ठीक है। सर उसको हिंदी में बोलते हैं मंदबुद्धि। एकदम नहीं, मंदबुद्धि नहीं मंदबुद्धि भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लोअर बुद्धि इज सर मतलब, उसको फिर उसको आजकल की भाषा में बोलेंगे ज्यादा समझदार, ज्यादा हाँ सियाना। हाँ हाँ, एकदम एकदम ये बोल सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आगे पद सेवनम से अर्चनम, वर्शिपिंग द लॉर्ड। It is complete offering in the form of pujas or ritualistic worship, chanting mantras, singing bhajanas, offering aarti, food, flowers, even clothes to the Supreme Lord. Supreme. Achha, love expresses in giving, and as love for Supreme Lord grows in the heart of the devotee, he or she naturally wants to offer his best. By doing this, the devotee derives inner satisfaction and inspiration. That is archana. वो अंदर से मन ही मन में खुश रहेगा, और वो अर्चना मतलब जैसे वो पूजा होता है ना, आरती होता है, दैट इज वी से दैट इज अर्चना। देन वंदनम, यस पूनम। স্যার अर्चनम আর একবার বলুন না বাংলায়। सर अर्चनम का मतलब ये है कि मतलब जो कलेक्टिव जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि भजन भी गा रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, मतलब एकदम फ्लावर्स दे रहे हैं, क्लोथ, जैसे आजकल लोग लड्डू गोपाल है उनकी करते हैं ना, पूरा एकदम उनका प्रॉपर वो करते हैं, तो वो एक एकदम कलेक्टिव चीजों को अर्चनम बोलते हैं। एकदम एकदम और स्मरणम मतलब कि बस याद कर रहे हैं, वो याद करते हैं। एक्टिविटीज नहीं है। नहीं, वो कोई शायद किसी को देखने में पता भी नहीं लगेगा कि ये भक्ति योग में है या भक्ति में है। इस सामान्य नागरिक की तरह वो रहेंगे, लेकिन वो मन ही मन में ऑलवेज भगवान को स्मरण करते हुए काम करते हैं। जैसे सर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में जैसे है, जैसे हिंदुइज्म में है कि अर्चनम करते हैं, है ना, सारी कलेक्टिव चीजें करते हैं। एकदम जैसे एकदम। सिखिज्म में है कि वो स्मरण करते हैं, भजन गाते हैं। हम्म, तो मतलब अलग अलग, सबके अलग अलग तरीकों से भक्ति योग करना है, मतलब परमात्मा से जुड़ना है। एकदम एकदम। अब তাহলে স্যার আমরা ডেইলি যে পুজোগুলো করছি, যে ঠাকুরকে প্রসাদ দেয়া, हम्म, গোপালের জামা পরানো, এটাই কি अर्चनम? नहीं, वो अलग अलग हो सकता है, दैट इज वो सक्षम भाव से, सखा भाव से भी किया जा सकता है। वो
बंदनम या वो आत्मनिवेदनम के रूप में भी किया जा सकता है। इट्स दैट डिपेंड्स ऑन। তো অ্যাকচুয়ালি আর্চানামটা তাহলে মানে কি হচ্ছে তাহলে? অর্চনম মিন্স পুজো অর্চনা করা, যেমন হচ্ছে যখন ওই প্রদীপ নিয়ে সামনে মূর্তির সামনে ঘোরায় আর বাজনা বাজে, দ্যাট ইজ কল অর্চনা। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। अर्चना मीन्स डिफरेंट। आरती। हाँ, आरती जिस टाइम पे होता है दैट इज। এখানে যে বলছে আর্চনা মানে ঠাকুরকে ফুল দেয়া, খাবার এক্সেট্রা, মানে অল ওভার মিলিয়ে আর্চনা। एकदम, मतलब उस टाइम पे सब कुछ होता है अर्चना के टाइम पे। Then Vandanam, saluting the Lord, it is offering obedience unto the Lord. This may involve bowing before the Lord, touching the feet of Lord. Gradually, this lead to devotee seeing the favor from of his Lord everywhere and all the time. वंदनम मतलब वंदना करना। जैसे कृष्ण का वंदना है ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, दैट इज कृष्ण वंदना। जब गणेश का वंदना आते हैं दैट इज वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, तो दैट इज वंदनम। ओके, तो ये भी एक that is also part of bandana. Dasyam involves adopting the role of a servant of the Lord. There is complete subjugation of the ego here. In course of time, the devotee sees himself also as a servant of the other devotees of the Lord. The ego subjugation happens without any sense of inferiority. Dasyam refers to a heartfelt yearning to be personal service to the Supreme. It is ultimate expression of humanity, yet it is held in its aspiration to such a lofty position. That is Dasyam. Then Sakhyam, developing friendship with Lord. दास्यम जैसे बोल सकते उदाहरण हनुमान, ही इज दास्यम, मतलब वो उनको अगर बाहुबल में देखा जाए, क्षमता में देखा जाए तो वो राम से भी ज्यादा वो शक्तिशाली थे, लेकिन उनको अगर पूछा जाता था तो वो यही बोलते थे कि मैं प्रभु राम का दास हूं, बिकॉज ऑफ ही वॉज इन दास्यम भाव। Okay, then Sakhyam, developing friendship with Lord in the form of worship or devotion. The devotee adopts the role of friend, Sakha, of the Lord. मतलब वो भगवान की सखा के रूप में वो रहते हैं, मतलब फ्रेंड। जस्ट लाइक सुदामा, वो जानते थे कि श्री कृष्ण गॉड है या भगवान है, बट वो ये भी मानते थे कि श्री कृष्ण मेरा फ्रेंड है। That is Sakhyam, Atmanivedanam. This involves the total surrender of oneself to the Lord. Even the smallest trace of ego is eliminated in the form of devotion to the Lord and His will, completely filled with devotion to God. The devotee gains the knowledge of his true self in this form of devotion, where the devotee and Lord became one. दैट इज आत्मनिवेदनम, मतलब वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, दैट इज आत्मनिवेदनम। देन क्वालिटीज ऑफ ए भक्त, भक्त का क्वालिटी क्या है? यस पूनम। सर आत्मनिवेदनम में वो लोग आएंगे जो ब्रह्मचार्य ले लेते हैं, मतलब
नहीं, आत्मनिवेदनम जैसे, हाँ, ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, संपूर्ण भगवान को ही ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे मीराबाई, ठीक है, या चैतन्य महाप्रभु, दे आर आत्मनिवेदन, मतलब वो सारा कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं और वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। दैट इज नोन एज आत्मनिवेदनम। और किसी का कुछ सर क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, Yes, ये ma'am. आत्मनिवेदनम और ये दास्यम जो है, इनमें फर्क क्या है? दास्यम है वो दास की रूप में सेवा करेगा, ठीक है, भगवान का सेवा हो या भगवान का जो भक्त हो उनका भी वो सेवा करेगा। लेकिन ये आत्मनिवेदनम वो सिर्फ भगवान को ही सब कुछ समर्पण करेगा। हाँ, ये दास्यम भी तो मतलब कि कोई अगर ये दास्यम रूप में सेवा करता है तो वो तो अपने मतलब अपने आप को ही सौंप देगा, और ये आत्मनिवेदन भी तो अपने आप को ही उसके चरणों में सौंप देगा। तो नहीं, दैट इज दास्यम भाव का उदाहरण, जैसे वो जब भगवान के साथ रहते हैं और उसको दास बन के, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हनुमान, हम्म, लेकिन यहाँ पे जैसे मीराबाई या चैतन्य महाप्रभु, वो संपूर्ण वो भगवान को खुद को सौंपते हैं। मतलब जैसे भगवान नहीं है, लेकिन दे आर फीलिंग द कनेक्शन विद गॉड ऑल द टाइम, एंड वो उन्हीं नॉलेज पे वो जीते हैं, नो अदर थॉट प्रोसेस, ठीक है, दैट इज आत्मनिवेदन। और वो भगवान जो भी अच्छा चाहते हैं उसके लिए वो काम करते हैं। देखो, एक ही साथ एक ही व्यक्ति के अंदर में दो तीन गुण रह सकते हैं, दो तीन भाव दिख सकते हैं हम लोग। ऐसे नहीं है कि एक ही फॉर्म, एक ही रूप हम लोग उनसे देख सकते हैं। ओके, देन क्वालिटीज ऑफ ए भक्त। भक्त कितने प्रकार का है? दैट इज अकॉर्डिंग टू भगवान श्री कृष्ण, चतुर्विध भजन्ते मम जन सुकृत अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी च भरतवर्षभ। मतलब भू भारत, मतलब पूरा विश्व में तीन रूप से आ, पूजा किया जाता है, जैसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थात ही ज्ञानी। आर्त मतलब जो दुखी है, हु इज डिस्ट्रेस, दे आर कॉल्ड आर्त। जिज्ञासु, जिनके मन में जिज्ञासा है, दैट इज दे आर कॉल्ड जिज्ञासु। अर्थात ही द डिजायर ऑफ वेल्थ, जो पैसा के लिए और जिसका अल्टीमेट उद्देश्य है पैसा। एंड ज्ञानी, ही इन सर्च ऑफ द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, जो अल्टीमेट ज्ञान क्या है, जो वो ही प्राप्त करना चाहते हैं, दे आर ज्ञानी। ओके, স্যার ফার্স্টেরটা একবার বলুন, আর্তাটা। ফার্স্টেরটা একবার বলুন, আর্তা যেটা। आर्त मीन्स डिस्ट्रेस, मतलब जो दुखी है। जैसे দুঃখী মানে কিসের জন্য? কি? कोई भी विषय हो सकता है, वो भगवान के शरण में जा सकते हैं। जैसे महाभारत का अगर युद्ध देखते हैं तो अर्जुन को बोला जाए, अर्जुन फर्स्ट थे आर्त, मतलब वो पीड़ित थे, कोई भी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, कि वो बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करना है। तो फिर जब श्री कृष्ण बोले कि तुम ज्ञानी हो के मूर्ख की तरह बात कर रहे हो, तब वो हो गए जिज्ञासु। जब वो जिज्ञासु हो गए, तब वो पूछने लगे उनको कि क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद वो जैसे युद्ध में गए हैं, क्यों गए हैं? टू गेट हिज किंगडम बैक, उनका जो भी किंगडम है उसको वापस लाने के लिए। मतलब इन दैट टाइम ही इज ज्ञान, मतलब अर्थात ही मतलब डिजायरर ऑफ वेल्थ। और जब वो बोले कि अच्छा मोक्ष क्या है, अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य क्या है, इन दैट टाइम ही इज ज्ञानी। ओके,
এই ডিভোটিস মানে কি? এই 4 টাইপস অফ ডিভোটিস, ভক্ত, 4 রকমের ভক্ত থাকে। মানে ডিভোটিস মানে ডিভোটি মানে ভক্ত? ডিভোটি মানে হচ্ছে ভক্ত। सर ये अर्थाती जो है इसका और एक थोड़ा डिटेल में थोड़ा उदाहरण जो देके पीड़ित बोलेंगे? है, जो दुखी है, जैसे अच्छा भगवान एग्जाम है, अच्छा एग्जाम हो जाए, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये जो कोई सोच रहे हैं कि अच्छा एग्जाम हो जाए, तो इसके लिए वो पूजा करने के लिए जा रहा है, तो दैट इन दैट टाइम ही इज अर्थाथी। यही आर्त, आर्त अर्थाती नहीं आर्त, आर्त मतलब दुखी है। अर्थ नहीं, मतलब अर्थाती जो है उसको वो समझ नहीं पा रही हूँ मैं। अर्थाथी है जैसे आप लॉटरी खरीदे, क्यों? पैसे के लिए ही खरीदेंगे सर। पैसा के लिए। तो आप सोचे क्या, वो भगवान के चरण में रख दिए, ऐसे बहुत लोग अच्छा रख देते अच्छा हैं। अच्छा, ये वैसे भगवान ही वाले। आपका टिकट है, टिकट अगर मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड अर्थाथी। या तो जैसे ये जो महाभारत का उदाहरण दिए, जैसे हम्म। अर्जुन, वो हम्म, क्या होता है, अपना किंग मतलब जो भी राज्य था वो वापस वो पाने के लिए वो युद्ध कर रहे थे, पैसा के लिए। तो दैट इज वी कैन से अर्थाथी। इन दैट वे ही इज अर्थाथी ऑल्सो, डिजायर ऑफ वेल्थ। ठीक है। ठीक है। देन विल मूव टू कर्म योगा। Karma means action and yoga means union. Karma means action and yoga means union. Karma yoga means yoga or union through action. It is a path chosen primarily by those who are often outgoing on action-oriented nature. It purifies the heart by teaching aspirants at selflessly without thought of personal gain or reward. By detaching yourself from the fruits of your action and offering them up to God, you learn to sublimate the ego according to the Bhagavad Gita. Karma Yoga is the selfless devotion of all inner as well as outer activities as a sacrifice to the Lord of all works, offered to the eternal as master of all the soul's energies and austerities. Means कर्म योग क्या है? जो कर्म के द्वारा मुक्ति ही कर्म योग है। और कर्म क्या है? जो सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए काम करते हैं, वही कर्म योग है। স্যার বুঝলাম না। जैसे ये एक श्लोक है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगहस्त कर्माणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म में हमारा अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल में कदाच नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कभी भी कर्म फल का हेतु ना मानना। ते संगहस्त कर्माणि, और कभी भी कर्म करते हुए चूकना भी नहीं है, मतलब कर्म नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज कर्म योगा। স্যার একটু বুঝিয়ে দিন না। यही है, कर्म में हमारा अधिकार है। कर्म क्या है? व्हाट इज कर्म? यस, भगवत गीता के अनुसार कर्म बोला जा रहा है अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म होता है। वर्ण कितना होता है? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड 4 वर्ण है, और आश्रम भी 4 है, दैट इज ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। जैसे एक स्टूडेंट, उनके लिए कर्म क्या है? पढ़ाई करना, नॉलेज लेना। तो उन पे नॉलेज के ऊपर उनका पकड़ होना चाहिए, ना कि वो कैसे नॉलेज वो ले पाएंगे, उसके ऊपर उनका जोर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म में हमारा अधिकार है, कर्म फल में नहीं।
एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स मिलेगा इसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि हम फेल भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कभी भी खुद को कर्म फल का हेतु ना मानना। मतलब जो खराब हो रहा है उसके लिए मैं कारण नहीं हूँ। और ते संग हस्त कर्माणी, और कर्म करते हुए चूकना भी नहीं है, नहीं कर्म करेंगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कर्म भी करना है और फल का इच्छा भी नहीं रखना है। किसी को तुम हेल्प कर रहे हो, हेल्प करने के बाद भूल जाना है कि तुम किसी को हेल्प किया है। अगर याद रखते हो कि ओके आई हैव हेल्प समवन, तो तब जाके दुख तुम्हारा स्टार्ट होगा। ओके তবে সেই কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। না, জানো ওকে, তো সবাই। কিন্তু আমরা তো ফলের আশাই করি। अच्छा, इसलिए दुख मिलता है। কারোর জন্য হেল্প করলে আমরা বলি যে হেল্প করেছি, কেন আমাকে পরিবর্তে হেল্প কেন করলো না। इसीलिए दुख होता है। ওকে স্যার। So this is karma yoga. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself to be the cause, hetu of the result of your activity, and never be attached to not doing your duty. That means you should never inactive or passive in action. Consider yourself as a tool in the hand of supreme consciousness and dedicate yourself in the selfless service as far as you can. मतलब जितना भी कर सकते हैं अपना कर्म करते हुए जाना है कभी भी। लेकिन कर्म कैसे करेंगे उसके लिए भी बोला गया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर काम करना है। संगम तत्व धनंजय, और उससे कभी डिटैच नहीं होना है धनंजय। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि एवं असिद्धि दोनों में ही समान रूप से रहना है। समत्तम योग उच्यते, और उसी को योग का सर्वोच्च स्थिति माना जाता है। उसी को योग का सर्वोच्च स्थिति माना जाता है। इसको और एक बार जरा बोलेंगे। ये जो लास्ट आपने बोले हैं, ये जो मतलब श्लोक योग है, में स्थिति होके काम करना है। बी steadfast in yoga, वो अर्जुना, perform your duty and abandon all the attachment to the success or failure. Such evenness of mind is called yoga. मतलब योग में स्थित होकर काम करना है। योग में स्थित मतलब ना कोई भी चीज प्राप्त करने में आनंद होगा, ना कोई बिछड़ जाने से दुख होगा, और दोनों में ही समान अवस्था में रहना है। धनंजय, धनंजय मतलब यहाँ पे अर्जुन को बोला जा रहा है। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा, हार में एवं जीत में दोनों में ही समान अवस्था में रहना है। समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते, यही इवेननेस, यही समानता भाव ही योग है। यही समानता भाव ही योग है। ओके अच्छा, और ज्यादा नहीं जाते हैं। 4 मेजर लॉज ऑफ कर्म क्या है? 4 मेजर लॉज ऑफ कर्मा योगा आर डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता, so that you can enjoy every moment of your work totally free from all stresses. कोई भी काम करेंगे उसके लिए स्ट्रेस नहीं रखना है, और स्ट्रेस कब नहीं रखेंगे? ऐसे काम करते हैं, वर्क विथ স্যার পরের শ্লোকটা কি নেই? ना আরেকটা যে শ্লোক আছে 18.26 सप्तम ना जो दरकन, तो उसका मीनिंग यही है, द वर्कर हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट and false ego, he is enthusiastic and resolute, and also indifferent to success or failure, is a sattvic performer of deeds. He is in the
righteous path. That is not necessary. Okay, work with a sense of duty. Work without getting intensely attached. Focus attention to the work. Never allows the anxiety about the result interfere with your mind during the currency of job. Accept failure and success with equanimity. Success and failure दोनों में ही समान भाव से रहना है. That is ultimate. Any question? वर्क विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कि ये काज मुझे कर्तव्य मान के करना चाहिए. Yes. अगर वो करने में किसी का मन ना लगे तो भी क्यों करना नहीं चाहिए. लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अब कोई काम है सपोज कि वो करने का मेरा मन नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरा कर्तव्य है तो मुझे करना है, इस वजह से मुझे करना चाहिए. एकदम. तो आप मन नहीं लगेगा तो अच्छा नहीं होगा ना वो काम. तो वो क्यों मन नहीं लग रहा है वो भी तो सोचना चाहिए. जैसे आप सोचो कि आप क्या बोलते हैं, अभी जो सिचुएशन है बंगाल का, कि यू आर एजुकेशन मिनिस्टर. आपका मन नहीं लगा कि आप आपका एक सिग्नेचर से कोई एक लड़का का जॉब लग जाएगा. सो व्हाट यू हैव डन. आप बोला कि नहीं, जॉब चाहिए तो मुझे 10 लाख रुपया दो इन कैश. ठीक है, तब मुझे अच्छा लगेगा कि सिग्नेचर करने में. हो सकता है ना. वो तो अलग बात है, वो तो मैं नहीं सोच रही हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा. तो वो वही तो मतलब इफ यू आर नॉट डूइंग योर ओन वर्क, तब एक दिन वो ऐसे सीबीआई या पुलिस आएगा और पकड़ के लेके जाएगा. इन योर लाइफ ऑल्सो इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क परफेक्टली, देन एक दिन देखना तुम ऐसे सिचुएशन में हो, तुम्हारे आसपास से सब लोग निकल गए और तुम जहाँ पे थे वहीं पे ही रह गए. एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या होता है उनका. हाँ तो ठीक है, चलिए मानते हैं किसी का पढ़ने का मन नहीं है, उसका कुछ और करने का मन होगा. नहीं, जब जिस टाइम पे जो है, जैसे 10th पास तो करना ही है, 12th पास करना ही है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन. अगर कुछ दूसरे भी काम उनको अच्छा लगे, लेकिन वो देखना है कि वो उनका वर्ण और आश्रम के अनुसार वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आपको अच्छा लगता है कि आप जाके माधुरी दीक्षित बन जाओ, ठीक है, तो आपको देखना है, अच्छा ठीक है, वट एवर यू आर डिजायरिंग, क्या उनका कैपेबिलिटी मेरे अंदर में है, या उस जगह पे पहुंचने का तजुर्बा मेरे पास है. अगर नहीं है तो वर्ण और आश्रम के अनुसार, मतलब इफ यू आर स्टडीइंग, इफ योर फैमिली इज नॉट अलाउइंग यू, सो यू शुड नॉट गो फॉर दैट. पर सर फैमिली तो बहुत कुछ के लिए अलाउ नहीं करते, नहीं, लेकिन वो देखना है. अगर इफ यू आर स्टडीइंग, आप हायर स्टडी करना चाहते हो, तो उसमें अगर आपको रोक रहे हैं तो आपको जाना चाहिए. तब आप दैट इज तब आपका धर्म वही होगा कि पढ़ाई करना ही आपका धर्म है. बट ये नहीं है, जैसे वट एवर यू आर सेइंग कि दूसरा कुछ करने का इच्छा, वो इच्छा क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा, वो अलाउड है कि नहीं. वो तो करते रहेंगे, वो एक्सपीरियंस होता रहेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, वरना कैसे. अगर कर नहीं मतलब जाएगा ही नहीं, ट्राई ही नहीं करेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा. देखो, आगे बढ़ना मतलब क्या है, ये स्पिरिचुअली आगे बढ़ना और पैसा, समाज और नेम प्रेम के लिए आगे बढ़ना वो डिफरेंट होता है. हम्म, जस्ट थिंक, जैसे नेम फ्रेम के लिए आगे बढ़ना और अपना जो ड्यूटी है, क्योंकि नेम फ्रेम वो अपना ड्यूटी नहीं है. आज के दिन पे शायद यू नो रामकृष्ण परमहंस,
रामकृष्ण परमहंस जानते हैं? हाँ, वो कितना दूर पढ़ाई किए थे? ज्यादा नहीं शायद। फिर भी ज्यादा तो नहीं, हम्म? पता क्लास नहीं। 4 से। मतलब कि उसने आई मीन जो पढ़ाई होते है स्कूल वूल के, वो पढ़ाई नहीं की है उतना ज्यादा शायद। लेकिन उनके पास पहले तो ज्ञान थे, और घर पे Basic बैठ है। के शायद, हाँ, वो पढ़ाई अलग है। नहीं, वो कभी स्कूल में गए ही नहीं। हाँ, मतलब वो वाला पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो घर बैठ के जो नहीं उसने नहीं, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो घर बैठ के पढ़ाई किए थे। पढ़ाई किए थे। बट वट एवर ही हैव डन 100%. हम्म तो whatever you are doing, if that is 100%, then everything is good. हम्म If that is not 100%, then you need to think of it. तो इसका मतलब ये है कि ड्यूटी जो है, ये हमारा जो कर्तव्य है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। एकदम। मतलब ये स्टूडेंट मीन्स ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हाँ सब, चलो सब स्टूडेंट्स है, लेकिन उनमें कोई है कि जिसका म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसके लिए ही पढ़ाई करना चाहता है, म्यूजिक में ही जाना चाहता है, तो उसके लिए वही उसका ड्यूटी है। नहीं नहीं नहीं, और म्यूजिक के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत म्यूजिक पसंद करते हैं और जो म्यूजिक का एबीसीडी है वो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स नीड टू बी टेकन केयर। ठीक है, तो हमारा ड्यूटी क्या है वो कौन बताएगा? तो व्हाट्स योर ड्यूटी? आई हैव टोल्ड यू ना कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, उसके अनुसार अपना ड्यूटी फिक्स करना है। जैसे इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जैसे योगा, तो अभी क्या करना है, योग लेके पढ़ाई करना है, इसका जो भी डूज है डोंट्स है उसके ऊपर काम करना होगा। हाँ, वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को पता, मतलब थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको 100% जानना है, तब जाके यू कैन बी इन नेम ऑफ योगा। हाँ, मतलब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, नहीं थोड़ा नहीं, थोड़ा। ये थोड़ा बोल के कुछ होता ही नहीं है, 100% देना होगा, देन यू विल हम्म गेट द 100% नॉलेज। हम्म ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, जितना भी फर्दर स्टडी, जैसे यहाँ पे लेवल 1 2 3, इवन हु हैव डन पीएचडी और पीएचडी का पढ़ाई, या तो कोई भी जगह पे जाएंगे तो देखेंगे कि योग के बारे में चर्चा हो रहा है, यही मूल मेन चीज है जो जहाँ पे चर्चा हो रहा है, इसके बाहर और कुछ है ही नहीं। हम्म ठीक है, तो इसको 100% करना, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, भक्ति योग को 100% पढ़ना, और भी क्या है क्या नहीं है, कर्म योग के अंदर में क्या है क्या नहीं है, उसको लेके क्वेश्चन क्रिएट करना। क्योंकि ये यूनिट 1 पढ़ने में हम लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, यूनिट 2 में जब जाएंगे 3 में जाएंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, सो जो भी है, तो भक्ति योग एंड कर्म योग, इसको लेके हम चाहते हैं कि आप लोग जैसे श्रवण तो हो गया, मनन और निधि ध्यासन करें, फिर कल हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। पूनम, कुछ क्वेश्चन है? यस सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि जो आश्रम है, मतलब जैसे हम लोग गृहस्थ में हम रह रहे हैं, तो सर हम गृहस्थ में रह के अपना ड्यूटीज कर रहे हैं, जो भी गृहस्थ जीवन का होता है वो कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब हम किसी फल की चिंता किया भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। एकदम, इसी से जुड़ सकते हैं, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा अल्टीमेट है, यही सोच विचार के साथ रहना है। ऐसा पर नहीं है कि अच्छा लेकिन वट एवर वेर एवर आई एम, ये मेरा मजबूरी है, ये नहीं सोचना है। ये भाव नहीं रखना है। यू नीड टू एंजॉय योर ड्यूटी वट एवर यू आर। पर सर आज मजबूरी में करेंगे तो फिर तो 2 दिन करके ही थक जाएंगे, फिर तो करने का मन ही नहीं होगा। पर सर जैसे आज हम ज्ञान योगा भी करते, मतलब हम ज्ञान भी ले रहे हैं जिससे हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं और कुछ चीजें हम अपने जीवन में लाते हैं, फिर हम भक्ति योगा में भी हैं थोड़े से,
तो हम्म ज्ञान, थोड़ा भक्ति, थोड़ा कर्म, तो हम्म सर हम तो ऐसे शैटर हो गए, हमारा कोई एक रास्ता ही नहीं है। नहीं, ऐसे कोई एक, हर एक से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कोई ज्ञान, मतलब ज्ञान क्या करेगा, मन को भक्ति की तरफ लेके जाएगा, और भक्ति कर्म करवाएगा, और कम कर्म और भक्ति जब रहेगा, देन यू कैन मेडिटेट, तब राज योग होगा। लेकिन राज योग के लिए शरीर को तैयार करना है, तब जाके हठ योग करना है। ठीक है, ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अल्टीमेट वही है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है। স্যার ওই চারটে বর্ণ আর চার আশ্রমটা একটু বলুন। চার বর্ণ কি কি আর চার আশ্রম? वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। चार आश्रम, दैट इज ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ओके। স্যার বলছি ব্রহ্মচার্য আর সন্ন্যাসীটা বুঝতে পেরেছি, মাঝখানে দুটো বুঝতে পারিনি। गारहस्थ मतलब जैसे पहले था यही 25 साल, मतलब जैसे फर्स्ट 25 ईयर्स वो गृह, गुरु का गृह में रहेंगे। ठीक है। আচ্ছা छोटे से बड़े होते हैं, फिर गुरु का गृह में पढ़ाई करके फिर वापस आते हैं। फिर उन लोगों को शादी ब्याह दिया जाता था, तो फिर उस टाइम पे दैट इज गारहस्थ। यस। देन गारहस्थ हो गया, फिर उसमें वो अपना, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा, फिर उनको बड़ा करेंगे। फिर वो जब वापस वो गुरु गृह से फिर वापस आएंगे, देन दे विल गो फॉर गारहस्थ, मतलब तब वो बैठे रहेंगे, अपना जो भी बच्चे हैं वो काम करेंगे। ठीक है। और फिर वो धीरे 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 अपना जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको हैंड ओवर करेंगे। ठीक है। एंड देन संन्यास, जब उनका भी बेटा या बेटी वो फिर आएंगे ब्रह्मचर्य आश्रम से, उनको गारहस्थ जीवन में जब उनका अभिषेक हो जाएगा, तब वो जाके संन्यास में चले जाएंगे, मतलब जंगल में चले जाएंगे, और जहाँ पे भगवान का नाम कीर्तन करते हुए फिर अपना पूरा बाकी जीवन रहेंगे। না लेकिन সন্ন্যাসের আগে একটা ছিল তো गारहस्थ, ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য, তারপর वानप्रस्थ। বানপ্রস্থ মানে? वानप्रस्थ मीन्स वही जो नेक्स्ट फिर उनका सक्सेशन आ गया, मतलब उनका बेटा फिर वो घर में आ गया, तो मतलब उनको देके वो काम करवाएंगे, और वो बैठे रहेंगे, देखेंगे कि वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो युद्ध में हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, वो अगर ब्राह्मण होते हैं तो वो बैठे रहेंगे, तो उनका बेटा वो पूजा करेंगे, वो देखेंगे कि वो सही कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कि सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। दैट विल दे विल टेक केयर। और उसके बाद जब उनका भी फिर नेक्स्ट सक्सेशन आ जाएगा, तब ये जाकर फिर 25 साल बाद, मतलब जब 75 ईयर्स प्लस हो जाएगा, देन दे विल गो फॉर संन्यास। मतलब पूरा जीवन अपना, मतलब मैं राजा हूं, मतलब मृत्यु तक मैं राजा बन के रहूंगा, ऐसा नहीं है। यू नीड टू गिव इट टू समवन एल्स। মানে তুমি শাশুড়ি হয়ে গেলে আর তুমি ভাবলে যে তোমার বৌমাকে একটা কথা বলি হবে না, তাহলে হবে না। ঠিক আছে জয়িতা? স্যার, ইয়েস রেশমিতা। প্রাণবস্ত স্কুলে পড়েছিলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, এরকম না? দ্যাট ইজ সন্ন্যাস। আচ্ছা, সন্ন্যাসটা স্কুলে বাড়িতে পড়েছিলাম মনে আছে আমার, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। यस। वानप्रस्थ मतलब वो चले जाना नहीं है, वो घर में ही रहेंगे, लेकिन वो सब कुछ अपना बेटा को संप्रदान करेंगे। यस पूनम। सर ये तो पहले होता होगा, आज से कितने साल पहले। आजकल तो जो जिसके पावर है वो अपना पावर देता ही नहीं है। इसीलिए तो झगड़ा होता है। ठीक है। और देखना अभी भी हर एक जगह पे जो सासू माँ होते हैं उनके साथ उनका बेटा का अ, मतलब बहू का झगड़ा हो ही जाता है हर एक जगह पे। विदिशा, होता है नहीं या नहीं होता है? हाँ और जब तुम सासू माँ बनोगे और तुम्हारा जितना भी उम्र होगा, देखना वो झगड़ा उतना बढ़ते जाएगा। इसीलिए इंडियन सिस्टम में है कि आपको घर छोड़ के भाग जाना है, आपको भागना है, लेकिन घर में जो रह रहे हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि वो नया
सोच विचार का होगा। तो आप जितना पुराना बनोगे, आपको उस संसार मतलब उनका फैमिली में उतना ज्यादा दखल अंदाज नहीं करना है। आप जितना बुरे होंगे उतना आपका ख्यालात, सोच विचार वो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए यू नीड टू स्किप योरसेल्फ। ओके। বলছি স্যার, বলছি এক্সামে কি মানে এরকম মিনিং আসে যে কর্মা যোগার মিনিং অফ কর্মা যোগা? व्हाट इज कर्म योगा, ये आपको बोलना है। আচ্ছা, তো ওটা কি মানে বড় করে বলতে পারি, বা এই যেটা আমরা জ্ঞান যোগায় পড়েছিলাম যে নলেজ গেইন মানে। ना वो ज्ञान योग में जो है ज्ञान योग, अभी जो कर्म योग के बारे में पढ़े हैं सिर्फ यही बोलना है आज মানে पर। अभी बोलने পড়ে का, যা বুঝি মানে। हाँ अभी अभी पढ़ लो, कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ अभी नहीं चर्चा करते हैं। तो না क्या না, हो, বলছিলাম যে মানে এক্সামে কিরকম মানে মানে কি বুঝেছি পুরোটা পড়ে এরকম পুরো বলতে হয় যে। कुछ भी पूछा जा सकता है। इफ दे आस्क यू ओके टेल अस अबाउट कर्म योग, तो कर्म योग के बारे में जो भी जानते हैं वो बोल देना है। तो ये सब भाईवा में होगा? हाँ हाँ, अभी एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है। अभी क्या बोले हैं, कर्म में अधिकार है, कर्म फल में नहीं। तो कर्म जो कर रहे हैं इसके ऊपर अधिकार जो बना के रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब देखना वो उसमें एग्जाम में ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। उसके लिए डरना नहीं है। ठीक है। ओके, सो विल कंक्लूड द सेशन। सर एक सवाल। यस। हाँ, वो आज सुबह क्या प्रैक्टिकल आज क्लास हुआ था? नहीं नहीं हुआ था। अच्छा, क्योंकि मैं- मैं 7:30 बजे तक बैठी थी, तो फिर चली मतलब लीव हो गई, तो मैं पता नहीं हुआ कि नहीं, मैं पूछ लूं। नहीं हुआ था। कल से वो कंटिन्यू होगा। ओके, विल कंक्लूड द सेशन। 7 बजे ही शुरू होता है कि 7:15 7:30? 7:10 to 15 में स्टार्ट हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your apologies. And gently open your eyes. Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you.